consumer. No separate sections appears in Open Access Regulation 2016 for CD reduction. Sir, ये 2014 में there was a separate section for CD reduction. Mention that if want to reduce the CD, your CD will be so and so. उसमें example दिया हुआ था. In this 2016, there is no such example or section mentioned in the Open Access Regulation 16. Only definition दिया हुआ है वहाँ पे billing demand का, लेकिन separate section नहीं है. However, as per the definition of billing demand, CD needs to be reduced. वो दिया हुआ उसमें clearly. MACDCL is to declare about the CD reduction in the procedure to be laid down. अभी last time उन्होंने letter लिया था. They have not implemented that letter for most of the cases. About 5 cases have come to my notice. They had given the letter, but उनका reduce किया नहीं उन्होंने. The advantage of CD reduction का है आपको lesser demand charges payable to the consumer, बचता है अपना demand charges. Disadvantage है only risk of the temporary tariff imposition. ये भी risk अपने ऊपर नहीं रहता consumer के. Temporary tariff imposition का risk goes on the trader basically. The duration of open access, this will not cover. ये क्या? A short term is not exceeding 1 month, medium term not 3 months to 3 years है, and long term more than 12 years है. This is same. There is no change. इसमें थोड़ा changes है. Application submission for time for intra-state open access within Maharashtra section 9, 10 and 11 open access का है. इसमें for medium term the application between 3 to 12 months पहला था. Now earlier it was 5 to 12 months. Now it has reduced to 3 to 12 months. And application for short term open access, the application can be made 4 months in advance but not later than 10th of the preceding month. 10 तारीख के पहले आपको देना है. Now interstate open access, earlier it was for the intra-state, that is within Maharashtra. In interstate open access, out of Maharashtra power is buying, there is a separate section, Open Access Regulation section 8.3, which reads as, notwithstanding anything contained in regulation 9, 10, 11. 9, 10, 11 is within Maharashtra के लिए है वो. The procedure for interstate open access shall be as per the Central Commission's regulation, that is CRC regulation basically, provided that in case of consumer connected to the distribution system seeking interstate open access, the MSLDC shall, before giving its consent to the regional load dispatch center, as required under the Central Commission regulation, obtain the consent of distribution licensee concerned in accordance with the regulations. Basically, this is a means, अगर interstate है आपका, it has to go as per the CRC regulations. Yes, sir. Now about this is a table of open access regulation section 8.3 for short term open access through power exchange. ये power exchange के लिए उन्होंने provision दिया है. Drawal point है consumer connected at distribution system within Maharashtra and opting to avail power supply from power exchange. तो उसमें आपको nodal agency क्या है? Distribution licensee on whose distribution system the consumer is connected, that is MACDCL in this case. Power, उसको documents what they have to submit it, power exchange related documents, copy of the latest electricity bill of the consumer. Power exchange का जो agreement आपको करना है trader के साथ, that agreement copy you have to submit to them. So these are the basically documents required for through power exchange. ये renewal of short term open access का it is, there is no change, it is as it is, that they will not guarantee for the renewal. Allotment priority, highest जो distribution company है, then second is the long term priority and third is medium and lowest priority आपका ये short term open access को हो, priority of allotment of the open access. Similarly, curtailment priority short term का risk ज़्यादा है. In case of congestion, they will curtail for short term first, then medium, then long term, and then short term, medium term, long term for the distribution licensee. So risk is more for short term, but अपने problem नहीं है वो curtailment का इतना. So overdrawal, there is no change. They will charge the temporary tariff as it was earlier in the last regulations. Similarly, for underdrawal, the power will go as waste. They will not pay anything for the power which is going as a waste. So there is no change for overdrawal, underdrawal.
Now, banking of renewable energy generation has been permitted in these new open access regulations. Regulation 19.3 over injection and under injection shall not be applicable in case of open access consumer obtained supply from renewable energy generation station identified as non-firm power. The surplus energy from a non-firm renewable energy generating station after set-off shall be banked with the distribution licensee. Banking has been permitted. The banking year shall be financial year from April to March. Banking of energy shall be permitted during all 12 months, provided that the credit for banked energy shall not be permitted during the month of April, May, October and November. 4 महीने में आप बैंक कर सकते हो, but you cannot credit that. Provided that the credit of the banked energy shall not be permitted. The energy banked during the peak TOD slots may also be drawn during off-peak TOD slots, but the energy banked during the off-peak TOD slot may not be drawn during the peak TOD slots. So night में आपने बैंक किया, वो दिन में आप उसको नहीं ले सकते हो. So that is a restriction in banking. And banking charges shall be adjusted in kind at 2% of the energy delivered at the point of drawal. And the unutilized bank energy at the end of the financial year, that is also limited to 10% of the actual generation shall be purchased by the distribution licensee at solar में मिलेगा. No, there are sections added here. These are added in all regulations. If MSEDC fail to implement the open access regulation or create some problem, then issue of orders and practice directions, section 35, subject to the provision of the Act, the Commission may issue orders and practice directions with regards to implementation of these regulations. Then power to amend, Commission has got the power to amend also. Then power to remove difficulties. If there is any interpretation problem or anything, then that can be sorted out by the Commission on our application or petition. So that is provided here in these regulations also. Yeah, RPO regulation already we had discussed about the 5 megawatt. This I just covered here. So less than 5 megawatt, Goenka have said we have to further study it, that composite and that word. Then that will give more clarity. Thank you very much, sir. This was all about the new open access regulations. I am thankful that I have been given the opportunity to give my presentation in before the VI members and also before the Power Guru, our Sri R.P. Goenka ji. Thank you very much. कॉन्ट्रैक्ट डिमांड है अपन आइए कितने गए और एक दिन के लिए अपन ने कुछ मेगावाट लिया तो अपने को बिलिंग होगा क्या कॉन्ट्रैक्ट डिमांड कॉन्ट्रैक्ट डिमांड रिडक्शन के लिए आपको एक दिन के लिए एक दिन के लिए रिडक्शन करिए सर पर मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है, अभी जो पहले इन्होंने फोर्स किया था कि आप जब भी ओपन एक्सेस लेंगे आपका कॉन्ट्रैक्ट डिमांड कम हो जाएगा 1 महीने के लिए. अभी सर वो नहीं है. अभी जो बाकी स्टेट्स में है कि आप जब भी एक्सचेंज से लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट डिमांड आपकी इंटैक्ट है और आपको कॉन्ट्रैक्ट डिमांड चार्जेस देने हैं, फुल देने हैं. आप यदि चाहोगे कम करना, क्योंकि ये सर हमारी MERC मेंबर से भी बात हुई थी, चेयरमैन से भी पहले भी, वो बोल रहे थे कि वी कैन नॉट फोर्स पीपल टू रिड्यूस द कॉन्ट्रैक्ट डिमांड. दे सो इवन ऑटोमेटिकली कैन नॉट बी डन अनलेस यू वांट इट टू बी रिड्यूस, देन ओनली इट विल बी रिड्यूस. तो आप यदि चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट डिमांड रहे, क्योंकि आप एक दिन के लिए लेना चाहते हैं तो आप कॉन्ट्रैक्ट डिमांड तो रखोगे, तो कॉन्ट्रैक्ट डिमांड रखेंगे, आप अपने डिमांड चार्जेस पूरे देंगे और उसके बाद यदि आपको लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट डिमांड कम करनी है, इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ ओपन एक्सेस. दैट डिसीजन विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ ओपन. Yeah, it is like what you want. Basically, if your production output is decreasing and you don't want to take that, then only you have to reduce. Otherwise, there is no compulsory reduction of contract demand. No, but you will not. रिड्यूस भी किया, आपको क्या बेनिफिट होने वाला? आपको पूरा महीने का डिमांड चार्ज वैसे लगेगा ही वो तो. डिमांड इज फॉर 30 days, इट इज नॉट फॉर 1 day. ओवर ड्रावर हो जाएगा ना मेरा.
मैंने रिड्यूस कर दिया हाँ और मैं यहाँ से नहीं लिया IX से, तो मेरा तो और ट्रबल हो गया। मगर एक दिन में रिड्यूस करके आपका बेनिफिट क्या होने वाला एक है? दिन के लिए नहीं, मैं कभी मेरे को आपका क्वेश्चन था एक दिन के लिए मैंने पावर लिया तो मैं रिड्यूस नहीं नहीं, इनका मतलब ये था कि सर पावर मैंने एक ही दिन के लिए लिया, मैंने मिला एक दिन के लिए, या मेरे को प्राइस उसकी एक दिन की रिड्यूस भी करेंगे तो इनको कमर्शियल बेनिफिट नहीं सर पहले वाला नहीं सर, ये तो पहले अंडरस्टैंडिंग, जो पहले रेगुलेशन था उस अंडरस्टैंडिंग से बोल रहे हैं। पहले ये था कि आपको पावर एक्सचेंज से लेना है, एक दिन के लिए भी लेना है, आपकी कॉन्ट्रैक्ट डिमांड एक महीने के लिए कम हो जाएगी, तो वो अंडरस्टैंडिंग इनकी है, वो अभी नहीं है, वो अभी नहीं है। चला सकते हैं सर, चला सकते हैं सर, ये बंद कर देंगे, या आप स्टैंड बाई लेके रखो कहीं से। एक उदाहरण है इंदौर रामाता जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट डिमांड जीरो करा दिया। एक अभी एप्लीकेशन मैंने डाली है कॉन्ट्रैक्ट डिमांड जीरो करने के लिए, तो पूरा बायोलेटरल से या IX से खरीदना ये बिल्कुल एक्चुअली एक और MSC DCL अर्जेंट डालता है जो किसी ने रेज नहीं किया। मान लीजिए आपका कॉन्ट्रैक्ट डिमांड 3 मेगावाट है और आपको ओपन एक्सेस 6 मेगावाट होना तो रिफ्यूज कर दो, आपका कॉन्ट्रैक्ट डिमांड से ज्यादा आप नहीं ले सकते, वो गलत है। मैंने बोला आप रिफ्यूज दो ही कंडीशन में कर सकते हैं, अगर टेक्निकल फिजिबिलिटी नहीं है, उसके पास अगर मीटर नहीं है और उसके ऊपर कुछ एरियर है, आपको NOC देने के लिए सिर्फ ये 3 ही चीजें देखना है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना। अगर उसके पास फिजिबिलिटी है, उसके सफिशिएंट है लाइन्स, उसके पास मीटर सफिशिएंट है, ही हैज टू गिव। बिल्कुल डिस्कशन हुआ, उन्होंने एग्री किया। मतलब वो उनको क्या होता है कि जो इनको एजुकेशन प्रोग्राम इनके लिए लिया ही नहीं गया, ओपन एक्सेस में सेक्शन करने बैठे, बिल्कुल उसको भी बनाते। तो उसके लिए क्या करना चाहिए सर? उसके लिए आपका मैं एजुकेशन प्रोग्राम रखवा देता हूँ, रखवा दीजिए सर, बिल्कुल सर। ऐसा करते हैं ना, एक सेशन आप उनको उनके MD को बोलिए कि बिल्कुल सर बिल्कुल, और हम आप उसको चार्ज नहीं करेंगे, एक दिन का रखेंगे प्रोग्राम। वी विल कवर अदर पार्ट्स ऑल्सो, नॉट दैट कि ओपन एक्सेस ही करें। आपको चार्ज करना है, उनको खिलाना पिलाना दिया करेंगे सर, करेंगे। नहीं हमने ये तो हम करते हैं सर, हमने कई स्टेट में ये किया हुआ है, वी डू इट 2 डे प्रोग्राम। हाँ आप लोगों ने क्या करना चाहिए, क्वेश्चन आंसर से बहुत कुछ क्लियरिटी आ चुकी है आप लोगों को मेरे ख्याल से, और कोई आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, अभी उसका आंसर मैं दूंगा बिल्कुल दूंगा। अगर मान लीजिए कुछ अगर ऐसा लगता है कि ये स्टडी करना है तो अर्जेंट को भी दूर करेंगे। सर एक विदर्भ के लिए कर रहा था, विदर्भ और मराठवाड़ा के लिए क्रॉस सब्सिडी कम हो, क्रॉस सब्सिडी वाला इशू खत्म हो गया। इधर मराठवाड़ा के लिए सिर्फ इंसेंटिव स्कीम है जो ये ट्यूसडे को कैबिनेट में आएगी और उसका GR का ड्राफ्ट भी रेडी हो गया, वो इश्यू हो जाएगा। तो व्हाट विल बी इम्पैक्ट ऑन वो मैं आप लोगों को नहीं बता या फिर जो भी कंज्यूमर है उसके लिए फायदेमंद रहेगा या फिर जो ओपन एक्सेस वाला है। कंज्यूमर है उनके लिए फायदा है। ऑल कंज्यूमर्स इंक्लूडिंग LT कंज्यूमर्स और मराठवाड़ा एंड विदर्भ, यहाँ पर आप लोग शायद ही पावर बेच पाओगे। अच्छा, यहाँ मराठवाड़ा विदर्भ में शायद ओपन एक्सेस में कोई जाएगा नहीं, और जो गए हैं वो शायद वापस हो जाएंगे। आपके लिए डिसहार्टनिंग जरूर है, मगर यहाँ नहीं सर जो भी इंडस्ट्री के लिए अच्छा हो, नहीं हम तो विन विन चाहते हैं। यदि आपके लिए वैसी टैरिफ कम हो जाए तो देयर इज नथिंग बेटर, बट इफ यू हैव हायर टैरिफ एंड नॉट बीइंग अलाउड, दैट इज हर साल 1000 करोड़ मिलेगा, हर साल 1000 करोड़ बोलते हैं। अंकल मतलब क्या है कि किस दिन CM पे उठ जाएंगे और बोल देंगे भैया गवर्नमेंट अगर चेंज होगी, गिर के गवर्नमेंट भी हो सकता बंद हो जाएगा। क्योंकि लास्ट टाइम अंकल अपने तो वैसे देखे अंकल कि 3 साल का रीजन क्या है, 3 साल का रीजन ये है कि गवर्नमेंट अभी 3 साल की बची है, ठीक है। तो इनके पास एक इलेक्शन के लिए एक एजेंडा रहेगा कि हम इसको फिर से बढ़ाएंगे, अगर आप हमको इसलिए 3 साल बचा उसको, तो 5 साल को 3 इयर्स की हमको 3 साल सब्सिडी मिलेगी। पर सर आपको बस इस वाले इशू इसमें यही एक चैलेंज लगता है कि अदर पार्ट्स ऑफ द स्टेट जैसे कोंकण है और तो उन लोग उसको ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे। इसमें ऐसा किया है कि कुछ पोर्शन नॉर्थ महाराष्ट्र और D और D+1 को भी दिया गया,
इन्वेस्टमेंट का कुछ पोर्शन अच्छा, उन लोगों को डी क्या है सर, डी क्या है? डी एंड डी प्लस जो बैकवर्ड एरियाज है अच्छा उसका कुछ एक प्रपोर्शन मतलब टोटल सब्सिडी का 20% उधर एलोकेशन है। अच्छा, तो कुछ बैलेंसिंग की हुई है, तो उससे बाकी लोग भी थोड़े से वो शांत रहेंगे। थोड़ा शांत करने के लिए अभी कुछ लोगों ने ऐसी तैयारी की कि देयर कैन नॉट बी डिफरेंशियल टैरिफ, एग्जैक्टली। बट इट इज नॉट ए टैरिफ, इट इज द गवर्नमेंट इंसेंटिव विच इज बीइंग प्रोवाइडेड टू रिमूव द बैकलॉग ऑफ दिस एरिया। बैकलॉग काफी ज्यादा होता पर इशू तो सर डेफिनेटली उसमें रेज होगा, बिकॉज क्या होता है कि इंडस्ट्री भी देखती है कि सपोज माय नेबर इज एबल टू प्रोड्यूस इन अ चीपर मैनर and I am not able to produce that, then there is always heartburn and then it can raise the issue. स्टील इंडस्ट्री, और वो हमने देखा हुआ एक्चुअली स्टेट्स में भी, जैसे डीवीसी और वेस्ट बंगाल हैज गॉट वेरी हाई टैरिफ, डीवीसी हैज लो टैरिफ, सो इंडस्ट्रीज देन ट्राई टू put pressure on the government that how they can do that, because I am not able to sell my steel, the other person is selling very with a differential of 50%. We are also saying that Chhattisgarh getting cheaper rate. Same thing. Sir. We are planning to install food processing unit, and my seasonal demand is 700 kilowatt. Okay. For that we are planning to install 1 megawatt solar plant. So for particular 3 to 4 months, my demand will be 700 kilowatt, and as you know, solar plant will generate throughout the year power. So can I able to sell that power throughout the year to somebody First of all, else? if you are going in the rooftop system, so you are restricted will be to 700 kilowatt. No, I'm straight away saying that It is grid connected. 1 megawatt unit in Then you cannot bank that power. In rooftop, you can bank that power and you can utilize whenever your demand is there. okay. So I will suggest you to go for 700 kilowatt. Don't go for 1 megawatt. And selling is not possible till you have some agreement with somebody. You cannot sell that power. And is there any if we install 2 megawatt plant somewhere near to MIDC area, and if we are having 2 or 3 players who is ready to buy that power what we are generating, so it is possible to sell that power to particular 2 to 3 consumers who are interested in buying the power. Those consumers should be eligible to get open access. They should be more than 1 1 megawatt. They should get NOC from MSEDCL to avail open access and utilize their network. Then only you will be So able to in sell that the case, power. we need to pay the charges to for the to the grid. Trading charges and losses and everything. Cross subsidy, etc. That can be done in that way, no? Yes. एज ए कंज्यूमर हम लोग आईए से कब से पावर लेना चालू कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वी गेट द अप्रूवल एंड एवरीथिंग? कल से. अच्छा एप्लीकेशन एलिजिबिलिटी तो इशू नहीं है. नहीं, अभी तो वो नहीं कर रहे हैं, यही इसी के लिए एक्चुअली हमारा एक मेन कंसर्न तो अभी यही है कि जब रेगुलेशन बिल्कुल ठीक है, उसका कुछ रेगुलेशन के अंदर में कुछ उनको इंटरप्रिटेशन के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. तो अभी मेरी मीटिंग में मैं उसको क्लियर करूंगा, डिस्कस हुई राजेश जी से उसके बारे में. तो व्हेन ये क्लैरिफाई होने के बाद में फिर उसके बाद इश्यू नहीं रहेगा, मोस्टली क्लैरिफाई हो जाएगा. अभी तक क्लैरिफाई हुआ नहीं क्या? सर हमने तो अपनी तरफ से किया है, पर वो अभी समझना नहीं चाहते या क्या है प्रॉब्लम है. बिल्कुल. देखिए जो डे है ट्रांजेक्शन में उन्होंने क्या लिखा है कि आपको 24 आवर्स पहले अप्लाई करना है, उससे पहले एप्लीकेशन नहीं ले रहे. इसका मतलब है कि आपको हर दिन एप्लीकेशन डालना, हर दिन आपको एप्लीकेशन फीस 15 आ जाएगा, 10,000 पड़ता है. 15,000 10,000 वो जो है उसके अंदर में क्लैरिटी ऐसी नहीं कि दैट इज अप्लीकेबल टू इंट्रा स्टेट. इंटर स्टेट के लिए सीआरसी के रेगुलेशन अप्लीकेबल ऐसा बोला है रेगुलेशन. तो सीआरसी के रेगुलेशन में जो चीज है वो इसमें आना चाहिए. ये चीज उनको समझाना पड़ेगा. नहीं, गवर्नमेंट कंपनी का स्टेक है, जैसे रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन है तो उसका स्टेक है, बट गवर्नमेंट का डायरेक्टली स्टेक नहीं है. तो देयर इज नो मोर क्वेश्चंस. आप लोगों को इनवाइट करता हूं. नया टैरिफ कब आ जाएगा? जल्दी नहीं आया तो अच्छा. You can provide
मैं आंसर देता हूँ सर अभी। बहुत ट्राई करते हैं बट माय थिंग इज गोइंग बियॉन्ड 3.5 3.7 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। अभी काफी सुनने में आ रहा है, मुंबई में अभी वगैरह किया था, ओपन एक्सेस के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी वो मैंने पहले ही बताया आप लोगों को, ये ड्यूटी क्यों नहीं लगा रही है। हाँ, ये तो एप्लीकेबल है ही सर। एप्लीकेबल रहना ही चाहिए बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी yes we are exempted being in Vidarbha but electricity duty is on consumption open access कोई भी हो, किसी से भी हो। विदर्भ वालों को तो बेनिफिट रहेगा ही, उनको तो नहीं लगेगी, मगर अदर पार्ट ऑफ द स्टेट में भी लगेगी। तो ये भी लगती है, नहीं लगती है, नहीं लगती है, पर वो अप्लाई कर सकते हैं। सर इनका एक क्वेश्चन था कि 1.70 और 1.80 2 रुपए में ये पावर कैसे मिलती है। अभी क्या हुआ सर, लास्ट ईयर में या पिछले 2 साल में एक तो कोल प्रोडक्शन बढ़ गया है, हमारा कोल प्रोडक्शन बढ़ा है। पहले क्या होता था, बहुत सी पावर प्रोड्यूसर को कोयला मिलता नहीं था, शॉर्टेज थी, उनको ई ऑक्शन में कोयला लेना पड़ता था। ई ऑक्शन में जब जाते थे तो वो प्राइस और बढ़ती थी। अभी क्या हुआ कि लास्ट ईयर में गवर्नमेंट का टोटल ओवरऑल कोल प्रोडक्शन 10% से बढ़ गया। 10% इज सफिशिएंटली क्रिएटिंग अ केस वेयर सफिशिएंट कोल इज अवेलेबल। नहीं सर, नाउ नहीं, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ सर, मैं आ रहा हूँ। दो सेकंड पार्ट भी है कि एक तो है कि ओवरऑल प्राइस थोड़ी कम हो गई है। दूसरा क्या हुआ कि जो हमारा मार्केट का जो मैकेनिज्म है प्राइस डिस्कवरी का, उसमें आपको अपनी बेस्ट प्राइस देनी है। क्या हुआ कि पिछले 6 साल में 1 लाख मेगावाट की कैपेसिटी ऐड हुई, उसके अगेंस्ट में हमारी डिमांड तो 40,000 मेगावाट ही आई, तो 60,000 मेगावाट तो एक्स्ट्रा कैपेसिटी आई है ग्रिड में। अब ये 60,000 में सबको अभी अपने पावर को बेचना है। अब बेचने के लिए जब वो एक्सचेंज में प्राइस बिड करते हैं, वो अपने वेरिएबल चार्ज पे बिड करते हैं। तो जिनकी वेरिएबल चार्ज 1.5 रुपये है, हाइड्रो की वेरिएबल चार्ज तो 0 है, तो वो 0 पे बिड करता है, 20 पैसा 30। वो तो वेरिएबल चार्ज ही नहीं, उसका तो पानी बह रहा है, और यदि आप नहीं उसको बिड करोगे तो बह जाएगा, उसका कोई यूज नहीं है। तो ये जो लोग हैं, इनके कारण सस्ता ये जो वेरिएबल चार्ज में बिड करते हैं 1.5 रुपये 2 रुपये में, तो इनको क्या रहता है कि आपने लॉन्ग टर्म में तो कुछ बेचा हुआ है, बाकी आप शॉर्ट टर्म में बेच रहे हैं। उनको यदि ये शॉर्ट टर्म में 1.5 रुपये भी मिल जाता है तो दे आर हैप्पी विद दैट। सो नाउ विद दिस स्ट्रैटेजी इन माइंड, बिकॉज दे हैव टू सेल इट, एंड व्हेन दे सेल इट, उनका जो जनरेशन बढ़ता है, तो जनरेशन बढ़ने से एफिशिएंसी भी बढ़ती है, क्योंकि आप यदि बेटर लेवल पे आप अपने यूनिट को ऑपरेट करते हो तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, तो आपकी कॉस्ट वैसे कम हो जाती है। तो ये सब देख के काफ़ी लोग हैं जो काफ़ी सस्ते उसमें बिड करते हैं। तो जब बिड करते हैं तो रेट कम अभी, हाँ नहीं, अभी सर, अभी ये 8 मई का केस है, हमने वो ट्विटर पे डाला था। वो यही था कि 8 मई को तो जर्मनी में नेगेटिव प्राइस गई। वहाँ क्या हुआ, 63 गीगावाट की डिमांड है, 63,000 मेगावाट की, उसके अगेंस्ट में 55,000 तो उनका सोलर और विंड से आ गया। तो बाकी जो न्यूक्लियर और कोल बेस्ड प्लांट थे, उनको यदि अपना लेवल मेंटेन करना है, क्योंकि वो तो बंद नहीं कर सकते, तो उन्होंने नेगेटिव प्राइस हो रहा। तो वो बोलते हैं कि हमको जनरेट करने दो, उसके लिए हम पैसे देंगे, तो इसके लिए नेगेटिव प्राइस है। So I thank you everybody to attend this very important workshop today, and I think it must have increased some of the knowledge regarding open access and working of power exchange. I extend my thanks to Mr. Rajesh Mejirata, Mr. Agarwal, and Mr. Pankaj Bakshi. You are all invited to have a high tea with us, and if any further discussions or any clarification on the operation of power market or open access, you can ask us during the tea time. Thank you.
आप जैसे आ जाइए नहीं आप जैसे मैं शेड्यूल करता जीरो जीरो और मुझे है क्या मारना पड़ेगा